السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں ناول کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول جنون خیزیاں، تحریر ہے میرم خان کی، ایپیسوڈ نمبر 27۔ سویرا یلو شیشوں والے پٹھانی فراک میں ملبوس تھی، جس پر یلو خوبصورت سی شال اوڑھ رکھی تھی۔ اس کے خوبصورت بال کھلے ہوئے تھے، مگر اس وقت وہ شال میں چھپے تھے۔ وہ زرغون خان کے ساتھ انیکسی کے لونج میں بیٹھی تھی۔ زرغون خان کشمالہ خانم کے ساتھ بیٹھا صوفے پر براجمان تھا۔ جن کے ساتھ بیٹھا وہ کب سے احترام سے ان کے سامنے نگاہیں جھکائے ان کی باتوں کا جواب بہت احترام سے دے رہا تھا۔ سویرا زرغون کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہالے خان بیٹھی تھی۔ ہالے خانم ریڈ کلر کی فراک پہنے ہوئے تھی جو بے حد فٹنگ میں تھی، جس پر ریڈ نیٹ کا دوپٹہ وہ کندھے پر ایک طرف ڈالے ہوئے تھی۔ اس کے سنہری بال کھلے تھے، اس پر نگاہ نہیں ٹک رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، وہ زرغون خان کے عین سامنے ہی بیٹھی تھی۔ ہالے خان کو دیکھتے سویرا کے لب آج بری طرح بھنچے تھے۔ وہ اس طرح زرغون خان کے سامنے بیٹھی تھی جیسے وہ اس کا محرم ہو۔ فراک فٹنگ میں تھی، گہرے گلے میں وہ اچھی طرح عیاں ہو رہی تھی۔ آج وہ اور زرغون خان دونوں ادھر کھانے پر انوائٹڈ تھے۔ کھانا وہ لوگ کھا چکے تھے، اب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ زرغون خان نے خاص طور پر اسے بال ڈانپنے کو کہا تھا اور ڈھیلا سا ڈریس پہننے کو کہا تھا۔ سویرا کو کشمالہ خانم پر بھی حیرانی ہوتی تھی۔ وہ ہالے خان کو ٹوکتی نہیں تھی۔ زرغون جو ایک غیر محرم تھا، اس کے سامنے ایسے ہی آ جاتی تھی۔ زرغون خان نے سویرا کو ہالے کی طرف دیکھتے پا کر ہالے خان کی ڈریسنگ کو ناگواری سے دیکھا۔ اس سب میں پہلی بار اس کی نظر ہالے پر پڑی تھی، بلکہ اس سب سے پہلی بار اس کی نگاہ اٹھا کر ہالے خان کی طرف دیکھا تھا، ورنہ ڈائننگ روم میں بھی وہ اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ مگر اب اپنی بیوی کی توجہ مسلسل ہالے خان کی طرف دیکھتے زرغون خان کی نگاہ ہالے خان پر پڑی تھی۔ وہ ناگواری سے جبڑے بینچ گیا تھا۔ زرغون خان نے ہالے خان کو قہربار نگاہوں سے گھورا۔ ہالے خان زرغون خان کی سرد نگاہ پر جلدی سے خود کو نیٹ کے دوپٹے سے کور کر گئی تھی، مگر سویرا زرغون خان کی نگاہ ہالے خان پر محسوس کر چکی تھی۔ زرغون خان کے گھورنے پر ہالے خان نے کیسے جلدی سے خود کو کور کیا تھا، یہ بات سویرا سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ زرغون خان کو ہالے کا ناگواری سے دیکھنا سویرا کو سوئی کی طرح چبھ گیا تھا۔ وہ صرف اس پر حق رکھتا تھا، اسے ٹوک سکتا تھا۔ وہ کیسے ہالے کو گھور سکتا تھا یا اسے ایسی نگاہوں سے دیکھ بھی سکتا تھا؟ ہالے خان اس کی کچھ نہ لگتی تھی۔ سویرا انگیٹھی میں جلتے کوئلوں کی مانند دہک اٹھی تھی۔ سویرا! زرغون کی پکار پر اس نے اسے ہفکی بری جلتی نگاہوں سے دیکھا۔ ادھر آؤ! زرغون خان کی نرم پکار پر اس کے اندر جلتے شعلوں پر نرم فوار پڑی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھتے زرغون خان کی طرف بڑھی تھی۔ کشمالہ خانم کے چہرے پر ناگواری صاف دکھائی دی تھی۔ ہالے خان کی رنگت سرخ ہوئی تھی، آنکھیں شدت سے بھیگی تھی۔ قہوے کی ٹرے لاتی شمینا نے ترہم امیز نگاہوں سے ہالے خان کی طرف دیکھا، جو پچھتاووں کی آگ کے ساتھ حسد و رقابت کی آگ میں بھی جل رہی تھی۔ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ راتوں کو روتے چیخیں مارتے ہوئے گزر رہا تھا۔ زرغون خان کے ساتھ اس کی بیوی کو دیکھ کر وہ دن رات روتی تھی۔ سویرا زرغون خان کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تو زرغون مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کی ہتھیلی شدت سے چوم گیا تھا۔ ہالے خان جلدی سے ٹیبل کی طرف بڑھتے گھٹنوں کے بل بیٹھتے چائے کی کیتلی سے قہوہ پیالیوں میں انڈیلنے لگی۔ وہ قہوہ پیالیوں میں کم اپنے ہاتھ پر زیادہ ڈال رہی تھی۔ اس کا ہاتھ گرم قہوے سے جل رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے زرغون خان کو دیکھ رہی تھی۔ سویرا نے یہ دیکھتے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلا تھا۔ زرغون خان جبڑے بینچے صوفے سے اسی لمحے اٹھا تھا۔
सवेरा भी सोफे से उठी थी। हाले, कशमाला खानम की सख्त पुकार पर हाले खान ने सिसकी बरते केतली ट्रे में रखी। वो अब नजरें झुकाए वहीं पर बैठी सिसक रही थी। जरहून खान बैठो। कशमाला खानम के संजीदगी से कहने पर जरहून खान लब बेंचे वापस बैठा था। सवेरा भी गहरा सांस भरते बैठ चुकी थी। लाउंज में अब मुकम्मल खामोशी छाई थी। सवेरा जरहून खान के सुर्ख सफेद चेहरे को देख रही थी। आले खान रोते हुए अपना चेहरा दुपट्टे से बेदर्दी से रगड़ रही थी। सवेरा के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। आले खान की हरकतें देखते आज उसे जरहून खान से हर सवाल का जवाब चाहिए था। मरहबा लाला, बीरूज की आवाज़ पर जरहून खान उसे देखते सर हिलाया। कैसी हैं भाभी? वो मुस्कुराते हुए सवेरा और जरहून खान के सामने वाले सोफे पर बैठा। ठीक है, सवेरा के बजाय जरहून खान ने जवाब दिया। अच्छा बात है लाला, ठीक ही होना चाहिए। मगर भाभी ने मुझे बताया था तुम्हारा और भाभी का बीच कुछ ठीक नहीं है। बिरूज की बात पर सवेरा ने नासमझी से उसे देखा। क्या मतलब? कब मिले तुम सवेरा से? जरूम खान सोफे से टेक छोड़ते सीधा हुआ। रंगत गुस्से से सुर्ख हुई थी। बाग में मिला था भाभी कुछ दिन पहले। भाभी बाग में खड़ा तुम्हें याद करते रो रहा था। भाभी से हमने हमदर्दी कर लिया। पूछा भाभी क्यों रो रहा है? तो भाभी ने रोते हुए बताया तुम उससे मोहब्बत नहीं करता, उससे प्यार नहीं करता, उससे अभी तक उसका हक भी नहीं दिया। बिरोज मूंछों पर हाथ फेरते सवेरा की जर्द होती रंगत को बगौर देख रहा था। जरून खान की रंगत में सुर्खियां शिद्दत से गुल रही थीं। आंखों की रंगत लहू रंग हुई थी। जरून खान ऐसे बात नहीं हुई थी। ये झूठ बोल रहा है। मैंने उसे नहीं बताया कि हमारे बीच अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपने मुझसे अपना हक नहीं लिया। उसने खुद ही अंदाजा लगाया था। सवेरा ने जरहून खान की सुर्ख रंगत देखते कपकपाते लबों से डरते हुए वजाहत दी। सवेरा की बात पर कशमाला खानम, हाले खान, शमीना सबके मुंह खुले थे। जरहून खान तैशुअलम से अपने अंदर उठते शोहलों पर काबू पाते अपनी मुठ्ठियां बेंच किया था। सवेरा खौफजदा होते वो सब कह गई थी जो वो नहीं चाहता था किसी के सामने ये बात आए। जरहून खान बेरोज को घूरते हुए सोफे से टेक लगा गया। बेरोज ने जवाबन मुस्कुराते हुए जरहून खान को देखा था। जरहून खान की आंखों में खून उतर रहा था। अगर वो इस बात को गैरत का मसला बनाते बिरोज पर चीखता तो उसके और सवेरा के रिलेशन पर मजीद सवाल उठते। बिरोज खान तो इब्ने डीड था। वो आज भी उसकी मार आराम से खा लेता। उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। उल्टा सब उसे सवाल करते। खानम भी, आज मैं इसी मकसद के लिए आपके पास आया था। वो बिरोज को खून उतरी आंखों से घूरते हुए खानम बी की तरफ मतवजा हुआ। सवेरा मेरे साथ रुखसत होकर आई तब वो कम उम्र थी, इसलिए मैं चाहता था ये सब रस्मों रवाजों से हो। मतलब धूमधाम से वो दुल्हन का जोड़ा पहने। वही सब रस्में हों जब एक दुल्हन रुखसत होकर आती है। आप बड़ी हैं, आप हमारे निकाह में भी शरीक नहीं हुई, तो मैं चाहता हूँ 2 दिन बाद आप अपनी दुआओं में सवेरा को रुखसत करते मेरे हवाले करें। जरहून कशमाला खानम का हाथ पकड़े संजीदगी से बोला। तो बिरूज गुस्से से जबड़े बेंच गया। बाजी उल्टी पड़ गई थी। उसने तो आज बहुत कुछ सोचा था। जरहून खान का शर्मिंदगी भरा चेहरा देखना था, उसे चीखते चिल्लाते हुए देखना था। ठीक है जरहून, ऐसे ही होगा, जैसे तुम चाहोगे। कशमाला खानम गहरा सांस लेते मौके की नज़ाकत को समझते संजीदगी से बोली। आले खान ने डुबडुबाई निगाहों से कशमाला खानम को देखा था, जो इतनी आसानी से ये सब मान गई थी। ठीक है खानम भी, अब 2 दिन बाद मुलाकात होगी। जरहून सोफे से उठता संजीदगी से बोला। क्यों बेरोज? 150 बकरों का इंतजाम तो होना चाहिए। इतनी शानदार दावत का अरेंज करोगे ना तुम? जरहून बेरोज को घूरते हुए लफ्ज चबाते दांत पीसते बोला। मरहबा लाला, मरहबा, जरूर, इससे भी शानदार दावत होगी। वो मुस्कुराते हुए सोफे से उठते जरहून खान की तरफ बढ़ा था। जरहून हाथ के इशारे से उसे आगे बढ़ने से रोक चुका था। बिरोज अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते मुस्कुराते हुए रुक गया था। चलें या आज रात यहीं रुकने का इरादा है? जरहून ने सर्द निगाह सवेरा पर डाली, जो फक रंगत के साथ परेशानी से बैठी थी। जरहून की बात पर सवेरा जल्दी से सोफे से उठी। अगर 2 दिन बाद रुखसती करना है सब रस्मों के साथ, तो 2 दिन इसको इधर रहने दो।
कशमाला हानम ने सोफे से उठते कहा। हानम भी, ये तो रस्में हैं जो 1 घंटे में भी पूरी हो जाएंगी। अपनी बीवी को वो 1 घंटा यहाँ छोड़ने से भी मेरी जान जाएगी। 2 दिन इसे इधर छोड़ा तो सच में जान से जाऊंगा। जरहून खान संजीदगी से बोलते सवेरा का हाथ नरमी से थामे वहां से चला गया था। जरहून खान सवेरा की कुलाई पकड़े हवेली दाखिल हुआ। बिरोज तुमसे मिला था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जरहून खान ने लॉन्च में दाखिल होते सवेरा की कुलाई छोड़ते हुए उसे घूरते हुए सर्द लहजे में सवार किया। वो मुलाकात सरसरी थी। मुझे नहीं लगा कि आपको बताना चाहिए था। सवेरा ने जरहून खान की तरफ देखते भीगे लहजे में कहा। इतनी सरसरी मुलाकात थी कि तुमने उसे ये भी बता दिया कि हमारे दरमियान अभी तक अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ। जरहून खान इस्तज़ाइया बोलते लफ्ज़ चबा गया। मैंने नहीं बताया था, उसने खुद अंदाज़ा लगा लिया था। सवेरा ने जरहून खान के सुर्ख व सफ़ेद चेहरे को देखते नजरें झुकाई बेहद आहिस्तगी से कहा। उसने खुद अंदाज़ा लगा लिया था और तुमने उसके अंदाजे पर मोहर लगा दी। जरहून खान ने उसकी झुकी निगाहों को सर्द निगाहों से घूरा। ये तुम्हारा अमेरिका नहीं सवेरा, जहाँ इस तरह की बकवास सबके सामने की जाती है। क्यों खड़ी रही तुम इसके सामने? जब वो तुमसे बात कर रहा था तुम क्यों नहीं अंदर आई? क्यों तुम अनेक्सी वाले हिस्से की तरफ गई, जबकि मैं तुम्हें सख्ती से मना कर चुका था इस तरफ जाने से? उसका बाजू बेदर्दी से दबोचते उसे अपने करीब करते उसके नकूश पर सुलगती सांसें छोड़ते हो राया। दिस इज पाकिस्तान, आई नाउ डेट these rights etc. nonsense are talked about in Pakistan. America has nothing to do with such thing. ये पाकिस्तान है, मैं जानती हूँ। ये हक वगैरह की बलश्त बातें पाकिस्तान में की जाती हैं। अमेरिका का इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। सवेरा जरहून खान की आंखों में देखते चीखते हुए बोली। जरहून उसे घूरते हुए उसका बाजू छोड़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहे हैं जरहून? मुझे छोड़कर आज दूसरे कमरे में सोएंगे? इतनी इतनी बातों पर मुझसे यूं बेरुखी बरता करेंगे? सवेरा भीगे लहजे में दबी आवाज में चीखी थी। तुमसे बेरुखी नहीं बरत सकता। गुस्से से मेरा दिमाग खोल रहा है और ये इतनी सी बात नहीं है। मेरा दिल कर रहा है बेरूज की जान ले लूं। उसने तुमसे ये बकवास की, मेरे खून में शरारे दौड़ रहे हैं। वो गुस्से से बोला था। इसमें मेरा क्या कसूर जरहून? सवेरा ने भीगे लहजे में पूछा। कसूर है तो तुमसे दूर जा रहा हूँ ताकि तुम्हें अपने गुस्से से हर्ट ना कर दूं। इसलिए थोड़ी देर तन्हा रहना चाहता हूँ। वो रुकते हुए बर्फीले लहजे में बोलते अपने कमरे की तरफ बढ़ा। सवेरा भागते हुए उसके मुकाबले आई थी। इसमें मेरा क्या कसूर है? सारी वाहियात बातें ये बकवास आपके भाई ने की, जिसकी तरबियत आपकी खानम बी ने की, जो किसी को भी कुछ भी करने से रोकती नहीं है बल्कि बढ़ावा देती है, जैसे हाले को देती है। वो जरहून खान की आंखों में आंखें गाड़े सर्दो सपाट लहजे में बोली। इसमें हानम बी और हाले कहाँ से आ गई? जरहून खान ने उसे सर्द निगाहों से घूरते हुए पूछा। जी आप मुझे बताएंगे कि हाले कहाँ से आई? उसके साथ आपका निकाह हो रहा था। ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? आपके ये सब रिश्ते भी हैं, आपने ये सब क्यों छुपाया? मैं आपकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हूँ, ये झूठ क्यों बोला? सवेरा ने चुपते लहजे में बड़ जलते सवाल किए। सब कुछ तब छुपाया नहीं था। मैं सबसे ताल्लुक तोड़कर ही सवात आया था। इस वक्त मेरा इन सब से कोई वास्ता नहीं था। मेरा यहाँ वापस आने का कोई इरादा नहीं था, मगर तुम्हारी मेहरबानी से यहाँ फिर से वापस आ गया। वो इसे गुस्से से घूरते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। सवेरा उसकी पुष्ट को भीगी निगाहों से देख रही थी। और तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली ही लड़की हो, क्योंकि मोहब्बत मैंने तुमसे ही की है। हालांकि मेरी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं है। वो दरवाजे के करीब रुकते हुए बोला था। वो अपनी बात मुकम्मल करते कमरे का दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हो गया था। सवेरा अपने कमरे में दाखिल होते बेड पर गिरते फूट फूट कर रो दी थी। वो इस तरह नाराज होकर दूसरे कमरे में चला जाएगा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो काफी देर रोने के बाद अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते हुए बेड से उठी थी। अपने वजूद से शॉल उतारकर बेड पर फेंकी थी। 2 दिन बाद दुल्हन बनाकर मुझे अपने कमरे में लेकर जाना है इस जरऊन खान ने। अब मैं मर कर भी उसका हक न दूं। समझता क्या है खुद को? सवेरा ने चीखते हुए मिरर में देखते
ड्रेसिंग टेबल पर रखा परफ्यूम उठाते हुए बंद दरवाजे पर मारा था। जरगून उसी लम्हे दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ था। वो जल्दी से पीछे हुआ, वरना परफ्यूम की बोतल उसका सर फाड़ देती। परफ्यूम की बोतल दरवाजे से टकराते हुए जमीन पर गिरती चकनाचूर हुई थी। सवेरा ने लब दांतों तले दबाए हफतजदा होते जरगून खान की तरफ देखा, जो अपनी हल्की गनी बेड पर हाथ फेरते नीचे बिखरे कांच को तहियर ज़दा होते देख रहा था। सवेरा उसके चेहरे पर हैरानगी देखते लब दांतों तले दबाए हफ्की से रुख पलट गई थी। जरगून उसे रुख पलटे देखकर उसकी तरफ बढ़ा था। वो उसकी तरफ बढ़ते उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते उसके पेट पर सख्ती से हाथ जमाते उसकी साइड गर्दन पर दांत गाड़ गया। सवेरा ने सिसकी लेते उसके बंदे हाथ पेट से हटाना चाहे। वो उसका रुख पलटे उसे कमर से दोनों हाथों से जकड़े उसे ड्रेसिंग टेबल पर बिठा गया। सवेरा उसके सीने पर दोनों हाथ जमाते हुए न रूठे अंदाज में खुद से दूर धकेल गई थी। वो उसके करीब होते उसका जबड़ा दबोचे उसके लबों पर झुके, उसके लबों पर झुकते उसकी सांसों को कैद कर गया था। सवेरा की मज़ाहमत बढ़ी थी। वो उसे कमर से जकड़े उसे ऊपर को उठाए उसकी टांगों को अपने गिर्द लपेट गया था। वो अभी तक उसके होंठों से लिपटा हुआ था। सवेरा अपनी मज़ाहमत रोकते उसकी गर्दन में बाहें हमायल कर गई थी। वो उसे बेड पर पटकते हुए उसकी तरफ बढ़ा। सवेरा गहरे सांस लेते गुलाबी बीकी आंखों से उसे देख रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ते उसकी कुलाइयों को तकिए से पिन करते उस पर हावी होते उसके गुलाबी लबों से लिपटे उन्हें कंधारी करने लगा। सवेरा अब उसकी शिद्दत में उसका भरपूर साथ दे रही थी। वो उसे कमर से जकड़े उसे अपने ऊपर कर गया था। तुम मेरा जुनून हो माइसवीन, तुम ही मेरा सब कुछ हो। मैं तुम्हारे बगैर कुछ घंटे तो क्या, एक मिनट एक लम्हा अब नहीं रह सकता। तुम मुझे अपने लबों का ऐसा जाम पिला चुकी हो, अब तो मर जाऊंगा अगर तुमसे दूर हुआ। वो इसे सख्ती से खुद में बेचते हुए उसके बालों में उंगलियां फंसाए उसके लबों को अपने लबों में पेवस्त कर गया। वो दीवानगी के आलम में उसकी सांसों को शिद्दत से पी रहा था। वो उसे ऊपर को करते उसकी कमर की जिप नीचे की तरफ खिसकाते उसकी फ्राक आस्तीनों से निकालते एक झटके से रिमूव कर गया। जरकून सवेरा सुख पड़ते उसके साथ लिपटी थी। उसे शनील की रजाई में कैद करते अपने साथ लिपटा गया था। आज इतनी खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारे बगैर सोता तो सोना हराम हो जाता। सोचा तुमसे लिपट कर अपना गुस्ल ही हलाल कर लूं। वो बेबाकी से उसके कान में सरगोशी कर गया था। सवेरा सुर्ख होते उसके साथ शिद्दत से लिपट रही थी। सवीन, तुमसे नाराज होकर नहीं दूसरे कमरे में सोने लगा था, बल्कि तुम्हारी बेपनाह खूबसूरती मुझे आज तुमसे दूर रहने पर मजबूर कर रही थी। हमारी फर्स्ट रात को लेकर मेरे दिल में बहुत अरमान है। मैं नहीं चाहता मैं गहरी गुस्ताखी कर बैठूं। उसके बालों को बुद्धि से दबोचते हुए उसका चेहरा अपने मुकाबिल कर गया था। इजाज़त दे दो ना आज जाना। वो इसके गाल को नरमी से सहलाते हुए उसे मलतजी निगाहों से देखने लगा। ज़रगून वो इसकी मलतजी निगाहों और उसके गर्म जिस्म की हिद्दत खुद पर महसूस करते रुहासी हुई थी। नहीं चांसेस क्या? वो गहरा सांस लेते उसे अपनी बाहों से आज़ाद करते हुए रुख पलट गया था। अब वो ऊंधे मुंह लेटे अपना तनफ़ुस दुरुस्त करते खुद पर काबू पाने लगा। सवेरा ने लब दांतों तले दबाए अपनी फ्रॉक बेड से उठाए पहनी थी। वो इसकी तरफ पलटते ठंडी आंख परते उसे बाजू से जकड़े खुद में कैद कर गया था। दूसरे कमरे में सोने की इजाज़त नहीं जाना, वो उसे खुद में कैद करते बोला था। उसके साथ सोना बेहद मुश्किल था आज उसके लिए। नहीं, सवेरा खिलखिलाते हुए उसके साथ मजीद लिपटी थी। बहुत जालिम हो मिस अमेरिकन। वो इसके बालों को नरमी से चूमते हुए आंखें मूंद गया था। सवेरा उसके सीने में कैद उसके सीने पर नामहसूस अंदाज में लब रख गई थी। वो मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे कभी धोखा मत देना सवीन। ज़रगून खान के पास उसका गुरूर उसकी बीवी सवेरा है। ज़रगून खान के पास सिर्फ उसकी बीवी है और कोई उसका नहीं। सबने धोखा दिया है मुझे, तुम मत देना वरना मर जाऊंगा। वो नरमी से बोलते उसके बालों को चूम रहा था। ज़रगून खान की आंखों से आंसू निकलते उसके बालों में जज़ब हुए थे। जैद खान तैशोलम से हवेली दाखिल हुआ था। वो इस वक्त स्याह शलवार कमीज पर स्याह मर्दाना शाल खुद पर ओढ़े हुए था। इसके खुबरू वजीह चेहरे पर करख्तगी सी छाई हुई थी।
तिलस्माती नकूश बुरी तरह तने हुए थे। आंखों में खून की लाली गहरी हो रही थी। वो लंबे लंबे डग बढ़ते मर्दाने के रास्ते अंदर दाखिल हुआ। उसके बारीक कदम मुश्तबा खान के कमरे के बाहर रुके थे। आंखों में खून की लाली के साथ पानी की रग गहरी हुई थी। वो तैशो अलम में भूल गया था कि वो मर्दान खाने के रास्ते से हवेली में दाखिल हुआ है। मुश्तबा के जाने के बाद उसने मर्दाने आना छोड़ दिया था। वो अपनी मुट्ठियां बेचते तेजी से जनान खाने की तरफ बढ़ गया था। वो जनान खाने में दाखिल होता तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। वो दहाड़ से दरवाज़ा खोलते अपने कमरे में दाखिल हुआ। वो अंदर दाखिल होते दरवाज़ा पूरी कुव्वत से दाड़ से बंद कर गया। दहाड़ की आवाज़ से और महक खुद पर कंबल लपेटे गहरी नींद सो रही थी। हड़बड़ाकर उठकर बैठी थी। वो इस वक्त जैद खान के सफ़ेद कलर के पैरों तक आते बाथरूम गाउन में मलबूस थी। पिछले 2 दिन से वो उसी स्याह फराक में मलबूस थी जो जैद खान इन 2 दिनों में 12 मरतबा उसके बदन से उतार चुका था। वो उसे कल रात को सख्ती से मना कर चुका था। वो ये फ्रॉक दोबारा नहीं पहनेगी। अब वो गंदे मलगजे लिबास में नहीं चाहिए। इसे वो कमरे में साफ सुथरी महकी सी चाहिए। जैद खान ने कमरे से बाहर जाने पर भी उसे सख्ती से मना कर रखा था। 2 टाइम का खाना भी उसकी हैसियत के मुताबिक उसके कमरे में उसे दे दिया जाता था। आज सुबह बाद शावर लेने के उसे पहनने को कुछ न मिला तो उसे मजबूरन जैद खान का बाथरूम गाउन पहनना पड़ा था। गंदा मैला लिबास वो खुद भी नहीं पहन सकती थी। इस फ्रॉक की हालत खराब हो चुकी थी। महक क्राउन के साथ टेक लगाए जैद खान को हरासा निगाहों से नीली निगाहों से देख रही थी जो उसे खून आशाम निगाहों से देखते उसकी तरफ एक ही जश्न में बढ़ते उसे कुलाई से पकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा कर गया था। महक बुरी तरह लड़खड़ाते हुए उसके कुशादा सीने में आन समाई थी। जैद खान उसे खुद से अलहदा करते पूरी कुव्वत से उसके गाल पर जनाटेदार थप्पड़ जड़ गया। थप्पड़ इतना जानदार था कि कमरे के दरो दीवार तक इस पत्थर की गूंज से लर्ज उठे थे। महक ये बेदर्द वार बर्दाश्त न करते हुए बेड पर औंधे मुंह गिरते बुरी तरह सिसक पड़ी थी। जैद खान उसकी तरफ बढ़ते उसे बाजू से जकड़े दोबारा अपने मुकाबिल खड़ा कर गया था। वो उसके बेरहम थप्पड़ का वार बमुश्किल सहते उसके सामने खड़े बुरी तरह लरज रही थी। इन 2 दिन में वो बहुत बार थप्पड़ खा चुकी थी। अब ना उसके नाजुक गालों में सिकत रही थी, उसमें सहन करने की शक्ति रही थी। वो मुकाबिल के सामने खड़ी थर थर कांपते उसकी शाल मुट्ठियों में जकड़ गई, वरना वो जमीन बोस हो जाती। इस पिस्टल पर तुम्हारे फिंगर प्रिंट्स मैच हो चुके हैं। तुम्हारे भाई की पिस्टल पर तुम्हारे और तुम्हारे भाई के फिंगर प्रिंट्स पाए गए हैं। जैद खान ने अपनी कमीज की पॉकेट से फिंगर प्रिंट्स रिपोर्ट निकालते महक के मुंह पर मारी। रिपोर्ट उसके चेहरे पर लगती जमीन पर गिरी थी। वो जैद खान की शॉल को मुट्ठियों में जकड़े खड़ी उसकी चॉकलेटी ब्राउन पुरकशिश आंखों में देखते सिसकियां भर रही थी। बताओ कैसे मारा मेरे भाई को, कैसे मारा मेरे भाई को। वो चीखते हुए उसकी मुट्ठियां अपनी शॉल से बेदर्दी से छुड़वाते हुए उसे जमीन पर पटक गया था। महक औंधे मुंह जमीन पर गिरी फूट फूट कर रो दी थी। जैद खान जमीन पर पंचों के पल बैठता उसे बालों से जकड़कर सीधा कर गया। जवाब दो मुझे, तुम उसे मारना चाहती थी। तुम्हारा भाई कहता था अगर उसे मौका मिले वो मुश्तबा खान की जान ले ले। यही कहता था ना तुमसे तुम्हारा भाई। उसके बालों को बेदर्दी से दबोचते उसकी नीली आंखों में देखते चीखा था। महक ने दर्द से कराहते हुए सरनफी में हिलाया। झूठ मत बोलना, वरना इन पहाड़ों में जिंदा दफन कर दूंगा। खून बहा में आई हो, तुम्हारे बाप मुर्तजा मलक के सामने भी जिंदा दफन करूंगा। वो कुछ नहीं कर सकेगा। इतनी मामूली हैसियत है अब तुम्हारी जान की। सैद खान की वजह से तुम सांसें ले रही हो। खींच डालूंगा मैं ये सांसें। वो कुर्राते हुए उसके चेहरे पर सुलगती सांसें छोड़ गया। महक की खौफ से सिसकियां बढ़ी थी। जवाब दो मुझे। आदत नहीं है जैद खान को अपना सवाल दोहराने की। तुम्हारा भाई मेरे भाई की जान लेना चाहता था कि नहीं। वो उसके सुनहरी बालों को बुद्धि से खतरनाक हद तक दबोचे उसकी आंखों में आंखें गाड़े चीहा। महक ने डर से कराहते अस्पात में सर हिलाया था। उसके अस्बात में सर हिलाने पर जैद खान की आंखों से जैसे खून टपका था। पूरे वजूद की रगें ज़ाहिर हुई थी। मम मगर वो यहाँ आने से पहले की बात थी। यहाँ आकर रूहान ऐसा नहीं चाहता था। वो जैद खान की आंखों में खून की लाली बढ़ती देखते कपकपाते लबों से वजाहत दे गई। अच्छा। वो इस्तज़ाइया हंसा था। मेरे भाई को मुश्तबा की पिस्टल से फायर किल लगा।
اور تمہارے بھائی نے اتنی آسانی سے اسے معاف کر دیا؟ بیوقوف سمجھ رکھا ہے مجھے۔ وہ ہراتے ہوئے اس کے بالوں کو سختی سے جکڑے بری طرح جھٹکا دے گیا۔ مہک در سے کراہتے بری طرح سسک پڑی تھی۔ بتاؤ مجھے کیسے پلاننگ کی تھی؟ کس طرح مارا تھا؟ کھائی میں میرے بھائی کو دھکا دینے سے پہلے کیسے مارا تھا؟ بتاؤ مجھے، تم نے اور تمہارے بھائی نے کتنی گولیوں سے ماری تھی؟ وہ تڑپا تھا، وہ چیخا تھا کیا؟ بتاؤ مجھے۔ زید خان بے دردی سے اس کے اوپر ہوتے اس کی ٹانگوں پر اپنا گھٹنا رکھ گیا۔ در سے مہک کی کربناک چیخیں برآمد ہوئی تھی۔ اور چیخو، اس سے زیادہ چیخو، تاکہ میرے جلتے دل کو سکون ملے، مجھے سکون آئے۔ اس کی بے رحمی پر مہک کی دردناک چیخوں میں اضافہ ہوا تھا۔ آہ! وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے کھڑا ہوتے چیختے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم کی بوتل اٹھائے، پوری قوت سے زمین پر مار گیا۔ شیشی زمین پر گرتے چکنا چور ہوئی تھی۔ مہک چیختے ہوئے پیچھے کو کھسکتی دیوار میں سمائی تھی۔ زید خان اپنی ہلکی گنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کمرے میں طیش و علم سے چکر لگا رہا تھا۔ یہ رپورٹ نہیں تھی، زید خان کے لیے ایسی دہکتی آگ تھی۔ وہ بری طرح تڑپتے جل رہا تھا۔ وہ سب کچھ ثابت ہو چکا تھا۔ مشتبہ خان کی گاڑی کھائی میں گرنے سے پہلے اس پر گولیاں چلائی گئی تھی۔ 3 گولیاں جو روحان ملک کی پسٹل کی تھیں، وہ جائے وقوع پر جگہ سے ملی تھی، مگر 3 گولیاں نہیں ملی تھی۔ یعنی وہ گولیاں مشتبہ خان کے جسم کے آر پار ہوئی تھی۔ وہ 3 گولیاں جو وہاں سے ملی تھیں وہ گاڑی پر لگی تھی، یہ بھی ثابت ہو چکا تھا۔ مہک دیوار میں سمائے زمین پر بیٹھی زید خان کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اٹھو، میرے ساتھ چلو، وہاں چلو جہاں میرے بھائی کو تم دونوں بہن بھائیوں نے مارا۔ مجھے آج وہاں تمہاری کربناک چیخیں سننی ہیں۔ جب میں تمہیں اس کھائی سے نیچے دھکا دوں گا تب ہی اب زید خان چین پائے گا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے بازو سے دبوچتے کھڑا کر گیا تھا۔ زید خان کی بات پر مہک کا پورا وجود چکرا کر رہ گیا تھا۔ زید! مہک کے لبوں سے گھٹی گھٹی آواز میں اس کا نام برآمد ہوا۔ شش! کوئی آواز نہیں۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ زید خان اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے خاموش کر گیا۔ مہک دیوار میں سمائے خاموش ہوئی تھی۔ چینج کرو، وہ اسے باتھ روم گاؤن میں دیکھتے دہاڑا۔ مہک کانپتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھی۔ زمین پر بکھرا کانچ اس کے پاؤں کے تلوے میں پیوست ہوا تھا۔ وہ در سے چیخ اٹھی تھی۔ چینج کرو، وہ اس کے پیر سے نکلتے خون کو نظر انداز کرتے دہاڑا۔ اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے بھائی کی قاتل ہے، اسے اس نازک وجود سے نفرت ہو رہی تھی۔ مہک در سے سسکتی ہوئی بمشکل قدم اٹھاتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کا فراق گیلا ہوتا واش روم کے فرش پر پڑا تھا۔ گیلا فراک اٹھائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زید خان اس کے رونے کی آواز سنتے ہوئے طیش و علم سے واش روم کی طرف بڑھتے واش روم کے دروازے پر اپنے بارے بوٹ والا پاؤں زور سے مارتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ دروازہ دہاڑ سے کھلا تھا۔ مہک ڈرتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ گیلا ہے، وہ فراق ہاتھ میں پکڑے اسے دکھاتے ہوئے رونے لگی۔ مقابل سے زیادہ ظالم انسان اسے دیکھا نہیں تھا۔ مقابل کا خوف جیسے اس کی سانسوں میں رچ بس گیا تھا۔ پہنو اسے، وہ اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے لفظ چبا گیا۔ مہک سے سکتے ہوئے اپنے گاؤن کی ڈوریاں اسی پل کھولے اپنا گاؤن زمین پر گرا گئی تھی۔ زید خان اسی کے سامنے کھڑے اسے قہر آلود نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ مہک اب کانپتے ہاتھوں سے وہ گیلا فراک زیب تن کر رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں کانچ ابھی تک پیوست تھا، اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، مگر مقابل کے خوف سے وہ کھڑی تھی۔ فراک زیب تن کرتے وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھتے چلی گئی۔ وہ مزید کھڑا نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھے اپنے پاؤں کے تلوے سے پیوست کانچ کو دیکھتے بری طرح رو پڑی۔ وہ جتنا بھی ظلم سہ لیتی مگر ابھی اس میں برداشت نہیں آئی تھی۔ وہ یہ کانچ خود نکال لیتی۔ اسے بہت درد ہوتا تھا، بہت درد ہوتا تھا۔ اس کے نازک وجود پر ہر روز ایک نئی اذیت رقم ہوتی تھی۔ ابھی اس کے بدن کے ہر حصے کو ان زخموں کی عادت ہوئی تھی۔ مہک نے اپنے پاؤں میں پیوست کانچ کو دیکھتے زید خان کو کرب زدہ نیلی نگاہوں سے دیکھا، جو اس کے مقابل کھڑا اسے سپاٹ سر سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ مقابل ظالم تھا، وہی یہ کانچ بے دردی سے نکال سکتا تھا۔ زید خان جبڑے بیچتے ہوئے اس کی نیلی آنکھوں میں سے موتی گرتے دیکھتے اس کے پاؤں کے تلوے پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا جہاں کانچ پیوست تھا۔ زید خان اسے بازو سے جکڑے بے دردی سے کھڑا کرتے اسے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے واش روم سے نکلا۔ جوتا پہنو، وہ واش روم سے باہر آتے حکمیہ لہجے میں بولا۔
مہک نے اپنا نچلا زخمی لب بے دردی سے دانتوں تلے پیوست کرتے جوتا پہنا۔ زید خان نے اس کے نازک قیامت زدہ وجود کو قہربار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنی شال اتارتے ہوئے اسے اڑائی تھی۔ وہ اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ ایک پاؤں زمین پر رکھے دوسرے پاؤں کو ایڑی کے بل رکھتے ہوئے اس کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ کمرے سے نکلتے وہ مختلف راہداریوں سے گزر رہا تھا۔ اس کے بھاری اور تیز قدموں کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ اس کے ساتھ بمشکل گھسٹ رہی تھی۔ زید! اس کا آدھا ادھورا نام پکارتے چیخ پڑی۔ اس کے بے دردی سے گھسیٹنے پر اس کا کانچ سے پیوست پاؤں پر اس کا پورا وزن پڑا تھا۔ وہ درد کی شدت سے بلبلاتے ہوئے چیخ پڑی۔ زید خان اس کی چیخ پر پلٹتے ہوئے اس کی طرف مڑا۔ وہ درد کی شدت سے اس کے قدموں میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ اپنا جوتا نکالتے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے تلوے سے کانچ نکالنے لگی، مگر وہ بری طرح کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ بار بار پیچھے کھینچ لیتی تھی۔ زید خان پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے اس کے پاؤں کو سختی سے جکڑ گیا۔ مہک نے سسکتے ہوئے اپنا پاؤں اس کے حصار سے کھینچا تھا۔ چیخنا مت! وہ اسے سختی سے تنبیہ کرتے بے دردی سے اس کے پاؤں سے وہ کانچ کھینچتے نکال چکا تھا۔ مہک کی دردناک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ در سے سسکتے ہوئے زید خان کا بازو جکڑتے آنکھیں موند گئی۔ مہک کے لمبے ناخن زید خان کے بازو میں سختی سے گڑھے تھے۔ اس کے پاؤں سے بل بل بہتا خون بہا تھا۔ وہ اس کے پاؤں سے خون بہتے دیکھتے کھڑا ہوا۔ گلوینا! وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ زید خان کی دہاڑ پر گلوینا، تبانہ خانم اور ورقہ خانم بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ جی ہاں، گلوینا نے مہک کے روتے وجود اور اس کے پاؤں سے رستے خون کو دیکھتے کہا۔ اس کے پاؤں کی پٹی کرو اور اسے باہر لے کر آؤ۔ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ تبانہ خانم کے کرب زدہ چہرے کو دیکھتے جبڑے بیچتے ہوئے حکم دیتے لمبے لمبے ڈگ برتے داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کہاں جا رہا ہے ہمارا زید کے ساتھ؟ یہ مردود اس کی گاڑی میں بیٹھے گا، ہم اس کا حال برا کر دے گا۔ ورقہ خانم غصے سے زمین پر بیٹھی سسکتی ہوئی مہک کی طرف بڑھی۔ مہک چیختے ہوئے کھسکتے ہوئے پیچھے کو ہوئی تھی۔ مہک کی چیخ پر زید خان کے باری قدم رکے تھے۔ مورے، تائی جان کو بولے میرے معاملات اور میری عورت سے دور رہے۔ وہ پلٹے بنا ہی سرد تنبیہ ہراہٹ زدہ لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے زنان خانے سے اپنے باری قدموں سے نکل گیا تھا۔ ورقہ خانم زید خان کی تنبیہ وہیں پر ہراہٹ پر رک گئی تھی۔ چلیں بھابی، اس کا آگے ہی بہت برا حال ہے۔ تبانہ خانم مہک کے نازک وجود کی تھر تھراہٹ اور اس کے زخمی پاؤں کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ورقہ خانم سے بولتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ قاتل ہے یہ، قاتل! قاتل کا بہن بھی ہمارا نظروں میں قاتل ہوتا ہے۔ ہمارا مشتبہ کو مار دیا، کیا قصور تھا اس کا؟ تم ترس کھا سکتا ہے تبانہ، ہم نہیں۔ مشتبہ کو تم نے جنم دیا تھا مگر پالا ہم نے تھا، تم نہیں، ہم اس کی مورے تھا۔ وہ ہم کو مورے بلاتا تھا۔ ورقہ خانم روتے ہوئے بین ڈال رہی تھی۔ تبانہ خانم کے قدم ایک لمحے کو رکے تھے، دوسرے لمحے وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ گلوینا! میڈیکل باکس پکڑے مہک کے قریب بیٹھی اس کی دبی دبی سسکیاں جاری تھیں۔ گلوینا اسے ڈب ڈبائی آنکھوں سے دیکھتے اپنے گال سے بہتے آنسو بے دردی سے رگڑتے اس کے پاؤں سے بہتا خون کوٹن کے دباؤ سے روکتے وہاں مرہم لگاتے پٹی کرنے لگی۔ ورقہ خانم کے بین بددعائیں زنان خانے میں گونج رہے تھے۔ گلوینا خاموشی سے مہک کی پٹی کر رہی تھی۔ مہک گھٹنوں میں سر دیے اپنے اندر باہر اٹھتے درد پر قابو پا رہی تھی۔ زید خان کی گاڑی ہواؤں کے دوش پر سفر کر رہی تھی۔ اس کے غبرو وجیح چہرے پر اس وقت شدید سرخی، کرختگی اور کرختگی چھائی تھی۔ وہ سیاہ شلوار قمیص پر سیاہ لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ مہک اس کے ساتھ سیاہ اسی کی چادر میں سر سے پاؤں تک لپٹی تھی۔ گیلے فراق اور زید خان کے خوف سے وہ شدت سے لرز رہی تھی۔ چہرہ اس نے لرزتے ہاتھوں سے بمشکل کور کر رکھا تھا، جو اس سے کور ہو نہیں رہا تھا، مگر زید خان کے حکم پر وہ اپنا چہرہ بمشکل ہی کور کیے ہوئی تھی۔ وہ بے حال سی اس بڑی اور باری شال سے لڑتے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ باری سیاہ شال اس کے چہرے سے سرکتی اس کے سنہری بالوں سے بھی سرک گئی تھی۔ جب اس ظالم انسان نے اسے کھائی سے دھکا دینا تھا تو پھر چلتی گاڑی سے ہی دے دھکا، کیا فرق تھا؟ ابھی یا تھوڑی دیر بعد؟ مقدر تو اس کے یہ سرد سخت پہاڑ تھے جن میں اسے دفن ہونا ہی تھا، یا پھر وہ دفن ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں میچے کرب زدہ سسکی لے گئی۔ زید خان ونڈ اسکرین پر اپنی سرخ وحشت زدہ آنکھیں گاڑے ہوئے خطرناک انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا جی کر رہا تھا ساتھ بیٹھے نازک وجود کو اس پہاڑ سے بے دردی سے دھکا دے دے،
मगर उसके और अपने दरमियान वो रिश्ता उसे रोके हुए था। अगर वो निकाह के 3 लफ्ज दोहराते उसे अपनी सुपुर्दगी में ना ले लेता, रूहान मलक के बदले बिना निकाह के उसके हवाले ये वजूद कर दिया जाता, वो पहली रात ही उसे मौत की नींद सुला देता। मुश्तबा खान के कत्ल में ये नाज़ुक वजूद भी मुलव्वस था। वो उसे बेदर सज़ा देने वाला था। शायद मौत ही अब उसका मुकद्दर थी। वो जबड़े बेंचते गाड़ी की रफ्तार मज़ीद बढ़ा गया था। गाड़ी उसी जगह पर एक झटके से रुकी जहाँ मुश्तबा खान की गाड़ी खाई में गिरी थी। महक आंखें खोलते सामने नजर आती गहरी खाई को देखते सीट में समाई थी। मौत से मिलना कितना वहशतनाक होता है, उसे बखूबी अंदाजा हुआ था। उसकी नीली खूबसूरत आंखें खौफ से फैल गई थीं। जैद खान अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते नीचे उतरते उसकी तरफ बढ़ा था। वो जल्दी से ड्राइविंग सीट की तरफ होते गाड़ी के तमाम दरवाजे लॉक कर गई थी। जैद खान उसकी तरफ के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाजे को लॉक देखते वो जबड़े बेंच गया था। लॉक खोलो। वो झुकते हुए उसकी तरफ से शीशे से उसे सर्द निगाहों से देखते मुक्का मारते हुए गरजा। खान के मुक्के की जरब से शीशा थरथरा उठा था। वो उसकी आंखों की वहशतनाक सुर्खी और गर्दन की नीली उभरी रगें देखते रोते हुए सरनफी में हिला गई थी। जैद खान के जबड़े बुरी तरह बेंचे थे। उसने पूरी कुव्वत से मुक्का दरवाजे के शीशे पर मारा। शीशे में दरार आई थी। महक खौफ से बुरी तरह उछली चीखी थी। दूसरे लम्हे वो ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते स्टीयरिंग को जकड़े कांपते हाथों से इंगेशन में चाबी घुमाते गाड़ी स्टार्ट कर गई। महक। जैद खान ये देखते हलक के बल चीखा था। महक ने जैद खान को देखते रोते हुए गाड़ी बैक पर ली थी। जैद खान बेयकीनी से सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था। महक। जैद खान चीखते हुए उसकी तरफ बढ़ा। आह। महक ने चीखते हुए गाड़ी को अब आगे की तरफ बढ़ाते स्टीयरिंग को बाई तरफ घुमाते जैद खान को हिट किया था। वो जमीन पर मुंह के बल गिरा था। महक रोते हुए रिवर्स पर गाड़ी ले गई थी। जैद खान जमीन से उठते अपनी पूरी फोर्स लगाए गाड़ी की तरफ भागा था। महक उसे अपनी तरफ आता देखते चीख चीख कर रो दी थी। जैद खान की पेशानी पर चोट आई थी। खून लकीर की सूरत में उसकी पेशानी से आरस पर बह रहा था। वो पेशानी पर उभरी रगों और सुर्ख खून आवर आंखों से उसकी तरफ तेजी से भागते हुए आ रहा था। महक चीखते तेजी से गाड़ी को मोड़ते गाड़ी जन से भगाकर ले गई। जैद खान जितनी तेजी से भाग सकता था वो भाग रहा था, मगर गाड़ी उसकी निगाहों के सामने ओझल होती जा रही थी। जैद खान ने गहरे सांस लेते अपनी कमीज की पॉकेट से मोबाइल निकालकर हुज़ैफा खान का नंबर डायल किया। हुज़ैफा, मेरी गाड़ी अभी भी जहाँ से मुश्तबा का एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ से मैं लेकर निकली है। पीछा करो इस गाड़ी का। वो किसी सूरत ज़्यादा आगे न जा सके। मुझे भी एक गाड़ी पहुँचाओ जल्दी। जैद खान दहाड़ते हुए फ़ोन बंद कर चुका था। महक बहुत तेज़ी से गाड़ी सड़क पर दौड़ाए हुए थी। उसकी नीली मतूरम आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। उसका वजूद बुरी तरह हिचकोले खा रहा था। वो कहाँ जा रही थी उसे कुछ खबर न थी, मगर इस जालिम इंसान की पनाहों में वापस उसे नहीं जाना था। वो जानती थी वो उसके इलाके से निकल नहीं सकेगी, मगर वो इतनी आसानी से कैसे खुद को मौत के हवाले कर सकती थी। वो कैसे खुद मौत के मुंह में चली जाती। वो रोते हुए गाड़ी चला रही थी। रास्ता खतरनाक था। सड़कें टूटी फूटी थी। चारों तरफ पहाड़ थे। स्पीड ज्यादा होने की वजह से गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो रही थी। महक ने सीट बेल्ट खींचते खुद पर लगाई। वो अब तेज रफ्तारी से ड्राइव कर रही थी। जो भी था उसे जैद खान की पनाहों से दूर जाना ही था। हुज़ैफा और जैद खान की गाड़ी कलाम की सड़कों पर बरख रफ्तारी से दौड़ाते महक की गाड़ी को तलाश कर रहे थे। जैद खान स्टीयरिंग को अपनी मजबूत उंगलियों से जकड़े जबड़े बेंचते गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाए हुए था। बारहों मगरूराना नकूस पर चट्टानों की सख्ती थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत में खतरनाक हद तक सुर्खी गुली हुई थी। पूरे वजूद की रगें ज़ाहिर हो रही थी। महक की गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही थी। जैद खान का गुस्सा और कहर जैसे आसमानों को छू रहा था। पेशानी पर बहते खून को उसने साफ तक नहीं किया था। महक उसकी निगाहों के सामने यूं उसी की गाड़ी लेकर भाग जाएगी। वो अभी तक जैसे ही यकीन नहीं कर पा रहा था। जैद खान की बीवी, वो भी खून बहा में आई हुई औरत, उसे यूं डाज करेगी वो बेयकीन था। उसका तैशोलम महक पर बढ़ता जा रहा था। वो बहुत बार उसके मुंह पर तमाचा मार चुकी थी। बड़े मुजमे में उसके भाई को थप्पड़ मारते, उस पर पिस्टल ताने से गाड़ियां देते वो इसे पूरे इलाके के सामने बेइज्जत कर चुकी थी। उसकी हवेली में पुलिस के साथ दाखिल होते वो उसके कहर को ललकार चुकी थी। अब उसके सामने ही उसकी गाड़ी में भाग गई थी। ये तमाचा सबसे भारी था। तब वो उसकी बीवी नहीं थी, मगर आज वो उसकी बीवी थी। उसके निकाह में थी। किसी को भी खबर हो जाती उसकी क्या इज्जत रह जाती। वो विंड स्क्रीन पर निगाहें गाड़े स्टीयरिंग पर पूरी कुवत से मुक्का मार गया।
आह! ज़ैद खान अपने बाल मुट्ठियों में दबोचते हुए दहाड़ा था। उसकी दहाड़ से गाड़ी तक लरज़ उठी थी। हुज़ैफ़ा की कॉल आने पर ज़ैद खान ने फ़ोन रिसीव करते कान से लगाया। खान, वो मिस मलक महक, मेरा मतलब है भाभी की गाड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही। हुज़ैफ़ा खान की आवाज़ स्पीकर पर गूंजी थी। हर हाल में तलाश करो उसे, वो मुझे हर हाल में चाहिए। ज़ैद खान फ़ोन पर चीखा था। खान, मुझे डर है भाभी ज़रहून के इलाके की तरफ ना निकल जाए। अगर ऐसा हुआ तो आप जानते हैं क्या होगा। हुज़ैफ़ा की बात पर ज़ैद खान की गर्दन की रगें बुरी तरह फूली थी। इससे पहले ही मैं इस औरत की जान ले लूंगा। ज़ैद खान भूखे दरिंदे की मानंद उड़ाते हुए फ़ोन बंद करते सीन पर पहुंच गया था। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। वो दहाड़ते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया था। महक गाड़ी का कंट्रोल अच्छी तरह संभाले ड्राइव कर रही थी। अभी अंधेरा नहीं छाया था, इसलिए उसके लिए ड्राइव करना आसान था। वो जिस सड़क पर थी वो काफी कुशादा थी। जैद खान की दी हुई शॉल उसके वजूद से सरकते उसकी गोद में पड़ी थी। महक ने चीखते हुए उसकी शॉल गोद से उठाए अपने कदमों में फेंक दी थी। नफरत है मुझे तुमसे जैद खान, तुम्हारी हर चीज, तुम्हारे लम्स, तुम्हारी सांसों से। मैं खौफ खाने से ज्यादा नफरत करती हूँ। वो स्टेयरिंग पर हाथ मारते हुए शिद्दत से रोते हुए चीखी थी। मैं मज़ीद तुम्हारी सजाएं नहीं सहूंगी। वो अपने नीले गालों से बहते आंसुओं को बेदर्दी से साफ करते गाड़ी की स्पीड बढ़ा गई। वो पिछले आधे घंटे से ड्राइव कर रही थी। उसके पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। उसकी चलती सांसों में सुकून की लहरें दौड़ी थी। कुछ भी करके उसे इधर से निकलना ही था। उसने एक्सीलेटर पर पांव रखते गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ाई। यकदम पीछे से आती एक गाड़ी जन से उसके दाएं तरफ से उसके आगे बढ़ने लगी। महक ने अपनी तरफ के शीशे से उस गाड़ी की तरफ देखा। ड्राइविंग सीट पर जैद खान को देखते उसकी नीली आंखें खौफ से फटने की हद तक फैली थी। जैद खान उसकी तरफ चेहरा किए अपनी सर्द सुर्ख आंखें उस पर गाड़ गया था। महक उसे देखते खौफ से शिद्दत से रो दी थी। दोनों एक दूसरे को देखते स्टीयरिंग को दोनों हाथों से जकड़े हुए थे। महक जैद खान को देखते अपनी आंखों से बहते आंसू बेदर्दी से रगड़ते एक्सीलेटर पर पांव का दबाव बढ़ाते गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ाने लगी। जैद खान की गाड़ी भी इसी स्पीड से आगे बढ़ी थी। वो अभी तक उस पर ही अपनी कहर बार निगाहें गाड़े हुए था, जो चादर के बगैर गाड़ी ड्राइव कर रही थी। अब दोनों की गाड़ी एक ही स्पीड से आगे बढ़ रही थी। जैद खान की निगाहें इसके नाजुक वजूद पर थीं, जो धीरे धीरे लरज रहा था। वो गहरे सांस लेते विंड स्क्रीन पर निगाहें जमाए अपनी गाड़ी को भगा रही थी। जैद खान का कहर महक पर बढ़ता जा रहा था। वो काफी जीदार थी, वो यहाँ की औरतों की तरह ना थी। जी उसे आज अंदाजा हो गया था। वो इतना डरने और खौफजदा होने के बावजूद आज उसके मुकाबले आ गई थी। उसकी दीदा दिलेरी पर जैद खान की रगों में दौड़ता खून भड़क रहा था। महक विंड स्क्रीन पर निगाहें जमाए तंदोतेज अंदाज में ड्राइव कर रही थी। जैद खान की तरफ उसने फिर निगाह नहीं की थी, वरना इस सर्द सुर्ख आंखों में देखते वो सांस न ले पाती। गाड़ी रोको। जैद खान अपने साथ वाली सीट की तरफ का शीशा नीचे करते हुए हलक के बल चीखा था। महक उसकी दहाड़ सुनते सीट पर बुरी तरह उछली थी, मगर गाड़ी उसने रोकी नहीं थी। वो रोते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाती जा रही थी। जैद खान उसे खून आशाम निगाहों से घूरते हुए स्टेयरिंग बाईं तरफ घुमाते अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी से हिट की थी। आह! महक चीते हुए स्टीयरिंग छोड़ चुकी थी। उसने गहरे सांस लेते जैद खान को देखा। गाड़ी रोको वरना तुम्हारे जान से मार डालूंगा मैं। वो हलक के बल उसे नफरत अमेज निगाहों से घूरते हुए चीखा था। महक उसे देखते नफी में सर हिला गई थी। जैद खान अपने जबड़े बुरी तरह बेंच गया था। सामने वाली सड़क पर पड़ते जरगोन का इलाका शुरू हो जाना था। अगर महक इस तरफ निकल जाती तो बिरूज खान और उसके आदमी गोलियों की बरसात करते महक को अपनी हिरासत में लेकर उसे जेर करने की कोशिश करते। जैद खान ने अपनी गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाते अपनी गाड़ी को घुमाते हुए महक की गाड़ी के सामने इस तरह अपनी गाड़ी रोकी थी। वो बिल्कुल सीध में उसकी गाड़ी के सामने गाड़ी लाते उसका रास्ता मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर गया था। आह! महक ने बुरी तरह चीखते हुए जैद खान की गाड़ी को देखते ब्रेक पर पांव रखा, मगर फिर भी गाड़ी जैद खान की गाड़ी को बुरी तरह हिट कर गई थी। जैद खान का सर बुरी तरह स्टीयरिंग पर टकराया था। उसकी साइड का शीशा टूटे उसकी आंख के पास आकर तिरछी सी चुभी थी। दोनों की चीखें गूंजी थी। जैद खान की गाड़ी में एयर बैग लगे थे। वो एयर बैग खुलते महक को मुकम्मल तौर पर बचा गए थे, मगर जैद खान के पास जो इस वक्त गाड़ी थी उसमें ये सिस्टम नहीं था। उसे बहुत बुरी तरह चोटें आई थी। महक अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए बुरी तरह चीख रही थी। जैद खान के सर से आंख के पास से खून बहता वो देख चुकी थी। वो बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ था। वो सीट से टेक लगाए कराहते हुए आंखें मूंदे हुए था। हुज़ैफा खान की गाड़ी जन से जैद खान के करीब आकर रुकी थी। वो तेजी से अपनी गाड़ी से निकलता जैद खान की तरफ बढ़ते उसकी तरफ का दरवाजा खोलते चीख उठा था।
خان حذیفہ خان نے تڑپتے ہوئے اس کی پیشانی اور اس کی آنکھ کے پاس اپنا ہاتھ رکھا جہاں سے خون بہ رہا تھا۔ پانی کی بوتل پکڑاؤ مجھے، زید خان نے در سے کراہتے کہا۔ حذیفہ خان نے آگے ہوتے ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اسے پکڑائی تھی۔ زید خان نے پانی کی بوتل لیتے اس کا ڈھکن کھولتے پانی اپنے سر سے نیچے بہایا تھا۔ خان، حذیفہ خان نے زید خان کو نم آنکھوں سے دیکھتے اسے پکارا۔ زید خان اپنی جیب سے رومال نکالتے ہوئے اپنے سر پر کس کر باندھا تھا۔ مہک ابھی بھی بری طرح تھرتھراتے ہوئے چیخیں مار رہی تھی۔ حذیفہ خان نے چہرہ گھماتے خون آلود نگاہ مہک پر گاڑی۔ حذیفہ خان، گارڈ ہو، گارڈ بن کر رہو، بیوی ہے وہ میری۔ زید خان حذیفہ خان کو گھورتے ہوئے غرا اٹھا۔ حذیفہ خان کی نگاہیں اس پر برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بغیر چادر کی تھی۔ جی خان، حذیفہ سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے سیدھا ہوتے کھڑا ہوا۔ حذیفہ خان کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ آج پہلی مرتبہ زید خان اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ وہ بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ زید خان اسے جان سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ ابھی بھی اس کا خون بہتا دیکھتے اسے اپنے وجود سے خون رستہ محسوس ہو رہا تھا۔ زید خان اسے گھورتے ہوئے گاڑی سے نکلا۔ حذیفہ خان اب مہک کی طرف سے رخ پلٹ گیا تھا۔ زید خان خون اتری آنکھوں سے مہک کی طرف بڑھا جو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ زید خان اس کی گاڑی کی طرف بڑھتے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے دروازہ کھولنا چاہا۔ وہ زید خان کو دیکھتے خوف سے اچھلتے ہوئے دوسری جانب کھسکی تھی۔ گاڑی کے دروازے ابھی بھی لاکڈ تھے۔ زید خان نے جبڑے بھینچتے جھکتے ہوئے نیچے سے پتھر اٹھاتے ہوئے گاڑی کے شیشے پر مارتے ہوئے اسے توڑا تھا۔ مہک چیختے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ وہ ٹوٹے شیشے کے اندر ہاتھ ڈالتے لاک کھولتے مہک کو ہاتھ سے کھینچتے باہر نکال گیا۔ مہک کی اب خوف سے چیخیں تھی۔ مہک اب خوف سے چیخی تھی۔ وہ روکے ہوئے سانس سے زید خان کے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ اس نے سانس روکتے زید خان کو دیکھا جو اسے کمر سے تھامے خون آلود نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ اس کی خون اتری آنکھیں اور خون سے تر چہرہ دیکھتے خوف سے ہچکی لے گی۔ اس کے سر پہ بندھا سفید رومال خون سے تر تھا۔ مہک کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ خوف سے اس کے مضبوط باہوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ زید خان نے جبڑے بھینچتے اسے سختی سے اپنی باہوں میں تھامے جھکتے ہوئے گاڑی سے اپنی شال پکڑی تھی۔ وہ اس کے وجود پر اڑاتے ہوئے اس کے بے ہوش وجود کو اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ وہ اسے لیے حذیفہ کی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اسے پچھلی سیٹ پر لٹاتے وہ حذیفہ کی گاڑی میں بیٹھتے گاڑی زن سے بگا کر لے گیا تھا۔